Bhavya Publication, Class 3, EVS. Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 11. And the name of your chapter number 11 is Water is Life. In this chapter, my dear student, we are going to see what is the importance of water. What is the meaning of water? In our previous chapter, we all have seen importance of air, meaning of air, in what way we human beings are responsible for polluting our airs. In this chapter, my dear student, we are going to see, as you can see on your screen, sources of water. Okay, how many sources of water are present on our planet Earth? We all are going to see. Then, what are the uses of water on our daily basis? Then, in what way we are going to conserve our water? Okay, and water makes life possible on the earth. Yes, absolutely right. All these points we are going to discuss in this chapter. So come with me and let's explore the chapter. Water is a precious gift given to us by the nature. People, animals and plants all need water to live. 3/4 of the earth's surface is covered with water, but there is very little fresh water on the earth. Yes, my dear student, it is absolutely right. जैसे एयर एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है जो हमारे मदर नेचर ने हमें दिया है, उसी तरीके से वाटर भी एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है, ठीक है, जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा हम इसे बना नहीं सकते, जो हमारे मदर नेचर ने हमें दिया है, ठीक है। चाहे हम पीपल्स हों, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, सबको जीने के लिए पानी ही चाहिए। और हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ के जो 4 पार्ट हैं उसमें से 3 पार्ट जो हमारा है वो वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हो अब आप सोचो, ये आपने प्लैनेट अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट जिसमें से वाटर है और 1 पार्ट लैंड है, तो आप सोचोगे ना, वाह कितना ज्यादा हमारे पास पानी है। लेकिन आपको पता है उस पूरे 3 पार्ट में से बहुत ही कम अमाउंट है पानी का जो हम पी सकते हैं, क्योंकि वो जो रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट है हमारा, वो क्या है, वो पूरा का पूरा हमारा सॉल्टी है, ठीक है। वो पूरा का पूरा हमारा सॉल्टी वाटर है और सॉल्टी वाटर हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ sources of water. Rain is the main source of water for us. We get rain from clouds. Some rainwater flows down in the form of streams and rivers from the mountains. Rivers flow into the seas and oceans. Rainwater also collect in lakes, ponds and tanks. Some rainwater soaks in the ground too. This is the water we get from wells and underground springs. In some places there is snow high up on the mountains. This snow melts in summer and flows into river. Acha, sources of water. If I'm talking about sources of water, then what is the main source of our water? It is our rainfall. Yes, it is our rainwater. ठीक है, तो rainwater हमें कहाँ से मिलता है? हमारे क्लाउड से मिलता है, ठीक है। जब ये पानी बरसता है तो वो हमारे नदियों में जाके कलेक्ट होता है। इसके अलावा हमारे जो बारिश का पानी है वो लेक में भी कलेक्ट होता है, पॉन्ड्स में भी कलेक्ट होता है और टैंक्स में भी कलेक्ट होता है, ठीक है। और जो रेनफॉल का पानी है वो रिवर में जाता है, वही रिवर अल्टीमेटली हमारे सीज और ओशन में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। और पानी अंडरग्राउंड वाटर में भी कन्वर्ट होता है। बारिश हुआ, जमीन पे पानी गिरा, तो वो जो जमीन है हमारी, जो हमारा सॉइल है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वो जब उसको एब्जॉर्ब करता है उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो आप लोग देखते होंगे ट्यूबवेल्स होते हैं हमारे गांव एरिया में, शहरों में भी होते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो वहां पे पानी कहाँ से आता है? यही ग्राउंड वाटर से पानी आता है, ठीक है। तो आपने देखा इतने सारे सोर्सेज हैं हमारे वाटर के। और कई जगहों पे तो बहुत बड़ी बड़ी स्नो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। ये स्नो माउंटेन्स क्या होते हैं? गर्मियों के सीजन में पिघल जाते हैं। एंड यू ऑल नो माय डियर स्टूडेंट, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ओके। एंड व्हेन दिस सॉलिड फॉर्म melted, it converted into liquid form of water, ठीक है। Now keep in mind, okay my dear student, so here my dear student, we are going to see the keep in mind fact. Now what point we have to keep in our mind? Let's see. Rainwater is the purest form of the natural water. Yes, okay. So water का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो हमारा रेन वाटर है। रेन वाटर से ज्यादा प्योर वाटर कोई भी पानी नहीं है। वाटर फ्रॉम रिवर्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटीज, ठीक है। अभी हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे ऑफिस एरिया में, आप लोगों के स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से है? यही जो रिवर में पानी कलेक्ट होता है रेनफॉल का, ठीक है, इन्हीं से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। रिकॉग्नाइज एंड नेम द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना पिक्चर, आपको, आप लोगों को क्या करना है, इन्हें रिकॉग्नाइज करना है और इनको बताना है कि ये कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर है। तो चलिए एक दो मैं कर लेती हूँ, बाकी आप करेंगे। तो पहला जो पिक्चर है वो आपको बता रहा है ये क्या सोर्स है रेनफॉल का। ये है आपका
सॉरी, ये सोर्स है हमारे वाटर का, रिवर, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिवर, ठीक है। नाउ ये क्या है, ये जो होता है ना, ये एक पॉन्ड एरिया है, ठीक है। ये क्या है, ये पॉन्ड एरिया है, ठीक है, ये पॉन्ड है आपका, ओके। अच्छा, अब ये क्या है, ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारे ओशंस, ठीक है, ये ओशन है। बाकी जो जो 3 है वो आप लिखेंगे, ठीक है, आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी यूजेस ऑफ वाटर। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे हमारे यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या है। अभी हम लोगों ने देखा सोर्सेस क्या क्या है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। अब हम ये देखेंगे हम लोगों ने जो पानी कलेक्ट किया है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो, विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर पानी नहीं है तो मीन्स नहीं है हमारे अर्थ पे कोई भी लाइफ, ठीक है। वी यूज वाटर इन मेनी वेज, वी ड्रिंक इट एवरी डे, वी यूज वाटर टू कुक, बाथ एंड वॉश आवर क्लोथ्स एंड हाउसेस। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, ठीक है। हम पानी को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हमें पानी नहाने के लिए चाहिए और खाना बनाने के लिए चाहिए, और साथ ही साथ हमें हमारे घर को क्लीन करने के लिए भी हमें पानी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स को भी पानी चाहता है अपने खाने को बनाने के लिए, ठीक है। सम प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनमें एक दिन पानी डाल दोगे देन यू कैन स्किप नियर अबाउट 3-4 डेज, आप उसमें 3-4 दिन बाद पानी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनको डेली पानी चाहता है, ठीक है। दस वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक फूड। अच्छा, ये बताइए, हमें पानी चाहिए खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को क्यों चाहिए, खाना बनाने के लिए, बट वो खाना कैसे बनाते हैं, क्यों, और खाना वो कैसे बनाते हैं, जब पानी आप देते हो उनमें, तो जो पानी आप उन्हें सप्लाई करते हो ना, वो पानी क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है सॉइल में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। वाटर, 10 फार्मर्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू इरिगेट फील्ड। इसीलिए फार्मर्स को आप लोग देखते हो कि बहुत ज्यादा पानी चाहता है अपने कल्टीवेशन के लिए। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। एनिमल्स और बर्ड्स को भी उनको पानी पीने के लिए चाहता है, साथ ही साथ उन्हें नहाने के लिए भी चाहिए। एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारे होते हैं वो तो पानी में ही रहते हैं। डेजर्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू स्टे लाइव। और डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें भी पानी चाहता है, बट हाँ, बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में और बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन में उन्हें कम पानी चाहिए, बट दे ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव, ओके। सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस ऑल आर द पिक्चर इन विच वी आर गोइंग टू यूज आवर वाटर। पानी पीते हैं हम लोग, ठीक है। एग्स को बॉईल करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे वॉशिंग क्लोथ्स है, पानी पीने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए इरिगेशन के लिए है, ये बाल धो रहे हैं मतलब नहा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपका कल्टीवेशन के लिए और बर्ड्स के लिए है, ठीक है। देखिए बर्ड्स पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा इतने सारे तरीके से हम पानी का यूज करते हैं। नाउ कीप इन माइंड फैक्टर देख लेते हैं, इसमें हमें क्या देखना है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर एक्वेटिक प्लांट्स। जिस तरीके से जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, द प्लांट्स व्हिच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लांट्स। Plants like cacti and animals like camels that live in desert can store water in their bodies, ठीक है। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टी है, और डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं कैमल्स, वो क्या करते हैं, उनके अंदर उनके बॉडी में एक ऐसे फीचर ऊपर वाले ने दिया है जिसमें वो पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और वो उसी स्टोर्ड वाटर को यूज करते हैं पीने के पर्पस के लिए, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वाटर साइकिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर साइकिल, लेट्स सी। Due to the heat of the sun, water from rivers, lakes, sorry, due to the heat of the sun, water from rivers, seas and lakes changes into water vapor. गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो सन रेज की वजह से, सन की हीट की वजह से जो पानी आपका रिवर में, ओशन में और सी में है, वो क्या होता है, वो उनका कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, ठीक है। तो जब पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर, इट कूल्स एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर वेपर क्या होता है, ये हल्का रहता है, ये ऊपर आसमान में जाता है, ठीक है। वहां पे ये वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। दिस चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे एक इवापोरेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस। इवापोरेशन क्या है, जब आपका सन हीट की वजह से जो पानी है वो आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, ठीक है। जब वो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन,
ठीक है, समझ में आया? मतलब जब पानी कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, कहा जाता है इवापोरेशन। जब इवापोरेशन कन्वर्ट हो जाता है आपके स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर्स में, इसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, द ड्रॉप ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये जो छोटे छोटे पानी की बूंदे होती है ना, यही क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, मोर एंड मोर वाटर ड्रॉप्स जॉइन द क्लाउड्स एंड बिकम लार्ज ड्रॉप्स। ठीक है, तो क्लाउड में जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या करते हैं, ह्यूज ड्रॉपलेट बना देते हैं रेनफॉल का। लार्ज ड्रॉप्स बीइंग हैवी फॉल ऑन लैंड एज रेन, तो जब ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, ये क्लाउड्स को हैवी कर देते हैं, तब हम लोगों को बरसात देखने को मिलती है। ठीक है, रेन वाटर फॉल्स इनटू द सीज, रिवर्स एंड लेक्स एंड फिल्स देम, तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नदियों में जाता है, सीज में जाता है, ओशंस में जाता है, लेक्स में जाता है, पॉन्ड्स में देखा जाता है। ठीक है, दस वाटर गेट्स हीटेड अगेन बाय द सन एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। दिस साइकिल ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड अगेन वाटर गोज ऑन एंड ऑन इन नेचर, दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो ये प्रोसेस ना कंटिन्यूअस चलता रहता है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका पानी था वो पानी कहाँ का, रिवर्स का, पॉन्ड्स का, लेक्स का, सीज का, ओशन का, सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से कन्वर्ट हो गए वाटर वेपर में। ठीक है, तो इसे हमने कहा इवापोरेशन में, इवापोरेशन प्रोसेस। तो जब ये वाटर वेपर हमारे ऊपर जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से पानी में, तो इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। तो कन्वर्ट होने के बाद ये बारिश के फॉर्म में बरसते हैं। तो बरस गए तो मतलब जो पानी जहां से निकला था वो वापस वहीं आ गया। तो ये ना कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा आपका वाटर साइकिल। तो समझ में आया आप लोग को इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और साथ ही साथ वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है, नाउ कीप इन माइंड फैक्ट्स क्या है आज वो देख लेते हैं। सी वाटर कैन नॉट बी यूज टू ड्रिंक बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट। सी का और ओशन का पानी हम लोग पीने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत अमाउंट में सॉल्ट होता है। फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर साइकिल इन द नेचर, और फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर, वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, वाटर हैज नो टेस्ट, वाटर हैज नो स्मेल, वाटर इज कलरलेस। बिल्कुल जैसे एयर का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, उसी तरीके से पानी भी क्या है, शेपलेस है। ठीक है, पानी इज टेस्टलेस, पानी इज स्मेललेस, ओके, एंड वाटर इज ऑल्सो कलरलेस। ठीक है, तो देखा आपने, ये सारे आपके पानी के प्रॉपर्टीज है। नाउ वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट वे वी कैन सेव आवर वाटर। वाटर इज वेरी प्रीशियस, वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट इट। वाटर बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और हमें इसे बहुत ही ज्यादा केयरफुली यूज करना चाहिए। तो वो कौन कौन से वेज हैं जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं, आज देख लेते हैं। वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग वेज। डोंट टेक शावर इंस्टेड ऑफ अ बाथ, ओके, डोंट टेक अ शावर इंस्टेड ऑफ अ बाथ। आप बाथरूम में जब जाते हो नहाने के लिए माय डियर स्टूडेंट, तो कोशिश करिएगा आप लोग बकेट का और मग का यूज करके नहाइए, शावर का यूज मत करिए, क्योंकि शावर में क्या होता है, पानी ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। डोंट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब आप ब्रश करते हो ना, तो टैप को खुला हुआ मत छोड़िए। ठीक है, जब आप ब्रश कर लेंगे तब टैप को ओपन करिएगा। ठीक है, फिर क्या है, देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ टैप्स। आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग देखिए कि आपके घर में जितने भी टैप्स, चाहे वॉशरूम में हो चाहे किचन में हो, ठीक है, आप लोग उसको देखिए कहीं से वो लीक ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर लीक होगा तो इट मीन्स व्हाट, इट इज वेस्टिंग आवर प्रीशियस वाटर। आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स द वाटर में बी यूज फॉर क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, आपने कपड़े धो लिए, उसके बाद ठीक है, जो आप पानी से कपड़े धोए हो आप उसको यूज कर सकते हो अपने घर को क्लीन करने के लिए भी, बट वो गंदा वाला बिल्कुल पानी नहीं। ठीक है, जो साफ पानी होता है, जो वो कपड़े धोने के लिए आप लोग यूज करते हैं, आपके घर में यूज होता है, उसको आप लोग वेस्ट करने के बजाय, फेंकने के बजाय, उससे आप अपने घर को क्लीन कर लीजिए। ठीक है, डू नॉट स्पिल वाटर अननेसेसरी। जब तक आपको जरूरत ना हो पानी को वेस्ट मत करिए। When it rains, buckets, drums and tanks can be filled with रेन वाटर। जब बारिश होती है तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो कि बकेट्स का, ड्रम्स का और टैंक्स का यूज करके आप रेन वाटर को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मींस RWH कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH is a process by which rain water is collected and stored for later use। ये वो प्रोसेस होता है RWH जिसमें बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है और इसको यूज करते हैं हम अपने बाद में यूज करने के लिए।
Rainwater is cleaned by filtration and is stored in an underground tank. This increase the water under the ground. फिर इस पानी को, इस रेन वाटर को हम लोग क्लीन करते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, इसको अंडरग्राउंड टैंक्स में हम लोग रखते हैं. और अंडरग्राउंड टैंक्स में रखने का मतलब होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ रहा है. ठीक है. स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. किस तरीके से हम ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं. कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग वाटर मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड ड्राइड. जो कंटेनर आप यूज कर रहे हो पानी को स्टोर करने के लिए, उसको बिल्कुल, आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है, उसे आप रेगुलरली क्लीन करिए और साथ ही साथ उसको वो सूखा हुआ रहना चाहिए. ठीक है. Stored water must be kept covered to prevent mosquitoes from growing in it. जहां पे आपने पानी कलेक्ट किया उस कंटेनर को आपको कवर करके रखना है. अगर आप कवर नहीं करेंगे तो उसमें मॉस्किटोज आएंगे और मॉस्किटोज आने का मतलब है डेंगू मलेरिया सब फैलेगा. ठीक है. डू नॉट पुट योर हैंड इनटू द वाटर. ठीक है. आप अपने हाथों को पानी के अंदर मत डालिए. ठीक है. टेक आउट द वाटर विद अ लॉन्ग हैंडल यूटेंसिल. ठीक है. अगर आपको उस कंटेनर से पानी निकालना है तो जो बर्तन होता है जिसमें लॉन्ग हैंडल्स लगे होते हैं उनका यूज करके पानी निकालिए आप. Forms of water. Now we are going to see in what forms water is available in our planet Earth. Water has three different forms. Water के three different forms हैं. It can be in the form of water we drink. It takes the shape of a thing in which it is stored or kept. It is in liquid form. ठीक है. तो सबसे पहला फॉर्म वाटर का क्या है? लिक्विड का फॉर्म है, जो पानी हम पीते हैं. ठीक है. आप उसको बॉटल में स्टोर कर सकते हो, आप उसको कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, टैंक्स में स्टोर कर सकते हो. तो जिसमें भी आप इसको स्टोर करोगे ना, ये उसी का शेप ले लेगा. ठीक है. तो ये देखिए, दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. When liquid is heated, it changes into steam or water vapor mixes with the air. Water vapor or steam has no fixed shape. It is the gaseous form of water. ठीक है. तो पहला फॉर्म क्या था my dear student? पहला फॉर्म आपका था लिक्विड फॉर्म. वाटर का क्या है? पहला फॉर्म है लिक्विड फॉर्म. फिर दूसरा फॉर्म ये होता है जब आप पानी को गर्म करते हो तो ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद गैस है तो ऑटोमेटिकली एयर में जाके मिक्स होगा. तो जब ये एयर में जाके मिक्स होता है तो एयर और जो वाटर, इसका तो कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है. तो ये क्या होता है? कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स साइज नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाता है गैस के फॉर्म में. ठीक है. तो देखा आपने, पहला लिक्विड फॉर्म है, दूसरा क्या है? गैस का फॉर्म है. अब तीसरा कौन सा फॉर्म है? वाटर कैन बी फ्रीज एंड बिकम आइस. Ice has a fixed shape. It is solid form of water. तीसरा फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है. ठीक है. तो जब आप वाटर को अपने फ्रिज में स्टोर करते हो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. आप लोग देखते हो आइस का एक शेप होता है. ठीक है. तो इसी जो शेप होता है आइस का यानी वाटर का, उसे हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. तो देखा आपने माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टोटल 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ वाटर. तो फर्स्ट शेप क्या है? हमारा लिक्विड है, जो हमारे लिए अवेलेबल है, नेचुरल अवेलेबल है. जब वो लिक्विड हम उसको गर्म करते हैं वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद जब हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फॉर्म्स ऑफ वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू सी, कीप इन माइंड फैक्ट. We get water in our homes after filtration and purification in the purification plants. हमारे घरों में जो पानी आता है, ये जानते हो कहाँ से आता है? ये पानी हमारे पास प्यूरिफाइड फॉर्म में आता है. ठीक है. कलेक्ट किया जाता है पानी को, फिर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसे क्लीन किया जाता है, तब वो हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट. कम विद मी एंड लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. All living things need water to live. Absolutely right. We all living things need water to live. Rain is the main source of water for us. Absolutely correct. Containers used for storing water must be cleaned regularly and dried. Water helps plants to absorb minerals from the soil to make food. Water has 3 forms: solid, liquid and gas. Now fact corner, let's see. 3/4 of the earth's surface is covered with water. Even then there is not enough water for all of us. That is because much of this water is in seas and oceans is salty. ठीक है. तो हमारे अर्थ के 4 पार्ट में से 3 पार्ट तो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन वो सारे सॉल्टी हैं, इसीलिए वो हमारे किसी भी यूज के नहीं हैं. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वाटर चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. बट बिफोर प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ OMR शीट. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपके प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताया है कि OMR शीट क्या होता है. ठीक है. OMR शीट एक शीट है, आप जब एग्जाम देने जाते हो आप लोगों को मिलता है. इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं या फिर 3 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर सही हो, आप उसके नीचे के सर्कल को या उसके ऊपर के दिए हुए सर्कल को, जिस भी डायरेक्शन में वो दिया हो, आप उस सर्कल को प्रॉपर कलर कर देंगे. ठीक है. अगर आपने उस पर टिक लगाया, उसको क्रॉस किया, हाफ कलर किया या कलर ही नहीं किया, छोड़ दिया ब्लैंक, तो ये चारों वे क्या होता है? गलत होता है आंसर देने का. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर
OMR sheet concept. Now come with me and let's complete the exercise of the chapter. पहला क्या है? Take the correct option. यहाँ पे correct options को टिक करना है. पहला है we get rain from clouds, sky, sun. Clouds से मिलता है, ठीक है? तो आप clouds पे टिक करेंगे. Aquatic plants live in land, sky, water. Aquatic plants कहाँ रहते हैं? Water में. वाटर कैन फ्रीज एंड बिकम वाटर स्टीम आइस. तो ये आइस बनते हैं जब आप फ्रीज कर देते हो, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स. डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. रेनफॉल, ठीक है? तो आप यहां पे लिखोगे रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. फार्मर्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू. इरिगेशन के लिए चाहिए फार्मर्स को बहुत ज्यादा पानी. देखिए यहां पे है फार्मर नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू इरिगेट फील्ड्स. To irrigate fields. Irrigate fields. Do not spill water unnecessarily. Okay? यही है. Unnecessarily. ठीक है? आइस हैज अ मिक्स्ड, सॉरी, आइस हैज अ फिक्स्ड. आइस का क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है. फिक्स्ड शेप. चलिए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट. वेयर डज रेन वाटर कलेक्ट? रेन वाटर कहाँ कलेक्ट होता है? ठीक है, तो रेन वाटर आपका कलेक्ट होता है रिवर्स में, सीज में, ओशंस में, ठीक है, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में. ठीक है? What are called aquatic animals? Aquatic animals आप किसको कहते हैं? वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. तो इसका आंसर आपका ये होगा the animals who live in water is called aquatic animals. ठीक है? Now what is the condensation? Condensation क्या होता है? ये देखिए, ये रहा आपका आंसर यहाँ पे. कंडेंसेशन आपका है माय डियर स्टूडेंट. ओके, व्हेन वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर. ओके, सो व्हेन वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर, ठीक है, उसी को तो कंडेंसेशन कहते हैं. यही है ना? देखो ये रहा आपका द ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू, सॉरी ये रहा. ओके, water vapor rises up in the air, it cools and changes into small drops of water. This change is called condensation. ठीक है? तो इसका आंसर आपका ये है when water vapor converts into water is called condensation process. ठीक है? चलो, नाउ व्हाट इज द RWH? RWH क्या है? तो ये देखिए RWH ये रहा आपका. यही है प्रोसेस बाय विच रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. ओके, रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. Rainwater is collected and stored for further use. ठीक है? देखो RWH is a process through which rainwater is collected and stored for further use. ठीक है? Full stop. Now, what are the three forms of water? कौन कौन से है three forms of water? तो ये रहा आपका आंसर.
The three forms of water is solid, liquid and gas. Okay, solid, liquid and gas. Okay, so my dear student, now we are going to see answer the following question. अब हमें यहाँ क्या करना है, what are the sources of water. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, sources of water है. तो आ जाओ देख लेते हैं sources of water. These are our sources of water. So देखो, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, the main source of our water is rainfall. Okay, तो इसका आंसर क्या है, the source of water is, the main source of water is rainfall. ठीक है, तो इसका आंसर आपका यही है, the main source of our water is rainfall. ठीक है, चलो फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, what are the uses of water. Now we are going to see what are the uses of our water. See, uses of water, we use water for our, okay, we तो इसका आंसर आप ऐसे दोगे, we use water for cooking purpose, then bathing purpose and for washing our clothes and houses. So ये आपका पहला हो जाएगा. सेकंड आपका आंसर होगा इसका, water is used by plants to make their food. ठीक है, फिर थर्ड आंसर आप इसका ये दोगे, water is also needed by, okay, water is also used by animals and birds for drinking and bathing purpose. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हैं. ठीक है, चलिए नाउ एक्सप्लेन द वाटर साइकिल. तो आपको वाटर साइकिल एक्सप्लेन करना है, तो वाटर साइकिल ये रहा आपका. तो देखिए आप इसको कैसे करोगे एक्सप्लेन, तो ये रहा, देखो ये देखिए, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, ड्यू टू हीट ऑफ द वाटर, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, water from rivers, oceans, etc. changes into water vapor, okay, called evaporation process. Then this water vapor again converts into tiny droplets of water called condensation, okay, called condensation, okay. So this process continuously happened, okay, this cycle continuously run. ये रहा देखो, this cycle of changing of water into water vapor and again water goes on and on in nature. This is called as water cycle. ठीक है, तो water cycle का आपका आंसर यहां से है, आपका ये देखिए, यहां से देखो, the cycle of changing of water into water vapor and again water goes on and on in nature called as water vapor, called as water cycle. ये आपका आंसर है इसका. चलिए अब दूसरा देखते हैं. Okay, how can you save water? Okay, in what way we are going to save our water? So these all are the points which you are going to mention in your option, in your answers. Like पहला क्या है आप कर सकते हो, don't take a shower instead of a bath, don't let the tap run when you brush your teeth, there should be no leakage of taps. ठीक है, उसका do not spill water unnecessarily. ये 3-4 points आप इसमें क्वेश्चन नंबर डी में लिख सकते हो. How do we store water? Okay, so now we are going to see the storage of water. So here you can see containers used for storing water must be, okay, क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, how do we store water? We can store our water in containers. Okay, we can store our water in containers and this stored water must be covered to prevent mosquitoes from growing in it. ठीक है, ओके, चलो अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं. लास्ट पॉइंट हमारा एक्टिविटी टाइम है. इसमें क्या है, काउंट एंड राइट द एवरीडे एक्टिविटी इन योर होम इन विच वाटर इज यूज्ड, राइट देम हियर. तो आपके घर में पानी कैसे यूज करते हो आप यहाँ पे इसको लिखिए. लास्ट पॉइंट है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल इन योर नोटबुक एंड कलर इट सुटेबली. आपको अपने साइंस के कॉपी में क्या करना है, वाटर साइकिल का डायग्राम बनाना, उसको कलर करना है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग करेंगे. ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 11 बेस्ड ऑन वाटर. Now my dear student, what you have to do, just go thoroughly through this chapter, complete all the exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class. Till then my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.